Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss some output-based question answer. In our previous lecture we already discussed output-based question answer related to bitwise operator and different operators such as arithmetic operators, comparison operator, assignment operator. We already discussed question answer, output-based question answer related to these topics, and this lecture our main focus is to discuss about conditional statement, and we'll see how different output based question can be solved using the conditional statement or loop. So in this lecture our main focus is to discuss all the um, output based question answer related to conditional statement or a loop. Let's start. The first question is, what will be the output of the following program code? So there is a code given here and you have to find out the output of the following program code. You can easily see here that this question, basically the code is given in terms of if, elif, else. So obviously there are three segments of this question. First segment related to if, second is elif, and third is else. So obviously one segment will be going to be executed according to the property of if, elif, else. So let's check. First of all, let us check the condition related to if. As you can see here that there are two conditions and these two conditions are separated by AND, and according to the property of the AND, if both the conditions are found to be true, only then final answer is true. So there is a truth table of A AND table. If there are two variables A and B and we have to find out A and B, A and B, A and B, then false, false, true, true, false, true, false, true. These are the different input possible combinations, and result is false when at least one value is false, then answer is false, and when both values are found to be true, only then the answer is true. So that is a property of AND operator. Okay, in this case you can easily see that 10 is less than 0 is false because 10 is not less than 0. Second is 0 is less than minus 10, it is true. So actually in this case we follow the condition false and true, it means this one, and final answer is false. Okay, so it is found to be false. Since it is found to be false, then A will not be printed at all. So let us go to second part, that is related to elif. In elif we can see here that elif 10 is greater than 0 or false. Now here or operator is there. So if you don't know the truth table of or, it is you cannot able to find the output of this question. Okay, so I just make a truth table of or. Here we make a truth table, and truth table means different input combinations are there, and according to the different input combination, possible input combination, the output are given in a table that is called the truth table. Okay, so A or B. Now look at this table: false, false, true, true, false, true, false, true. These are the possible input combination, and according to the property of the or operator, when at least one true is there, then our output is true, otherwise false. So in this case here false, in this case true, in this case true, and last case is also true. Okay, so alifart, let us check the alifart. 10 is greater than 0, of course it is a true condition, or false means this condition is to be followed, true and false. So true and false, we get the answer true, so final answer is true. Since final answer is true, then the part that is related to elif will going to be executed, that is B will be printed. So B is the answer. Since B is printed, then we don't need to check the else part.
because only one part is going to be executed, either the part related to if, either the or elif or else. So elif is found to be true, so uh, B is the answer of this question. Now I think it is clear to all of you. Okay, look at the code. This is question number 2. What will be the output of the following program code? So this is the code given here, again in terms of if elif else, but here nested if elif else is used. You can easily see here that the nested if else means that the if else is a part of another if else. That is called the nested if else. So look at the code first. It will give you a clear idea. Okay, so our second question is, what will the output of the following program code segment? So it is again the case of conditional statement, if else. So first if is there and the else related to if is there. You can easily see on screen. तो या तो यहाँ पर ये प्रिंट होगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, या फिर इससे रिलेटेड एल्स एग्जीक्यूट होगा. Only one part is going to be executed here. One thing should be very clear. Okay. So in first condition, you can easily say true or true. True or true. Obviously, if one true is found, if the any condition is found to be true, then final result is true. In case of or, तो ये अगर हमें फर्स्ट ट्रू मिल गया तो सेकंड हमें ट्रू देखने की जरूरत नहीं है, और से सेपरेट कर भी रहे हैं हम तब भी उस केस में देखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि और से अगर हम सेपरेट करते हैं और दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू पाई जाती है तो फाइनल आंसर ट्रू ही होता है. तो यहाँ तो ये ट्रू हो गया. अब देखिए ये चूंकि ट्रू हो गया तो फिर इस ये पार्ट एल्स वाला तो एग्जीक्यूट नहीं होगा. इट मीन्स डी तो प्रिंट नहीं होगा. वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट डी इज नॉट प्रिंटेड एट ऑल. डी तो प्रिंट नहीं होना. तो ये ट्रू इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया. अब हम इफ की बॉडी के अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमको फिर से एक इफ एलिफ एल्स मिल जाता है. तो मिल सकता है, इसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं. इफ के अंदर हमने एक और इफ डिफाइन कर रखा है. तो चलिए इसको भी चेक करते हैं. तो हमें वन बाई वन जाना है. अभी बात तो क्लियर हो गई यहाँ पर कि एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा. दिस एल्स इज नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट एट ऑल इन एनी कंडीशन. तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होना क्योंकि इफ कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू. चलिए इसको देखते हैं. तो पहले हमने ये देखा फॉल्स, ठीक है, एंड ट्रू, इतना देखा. तो फॉल्स एंड ट्रू क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली एंड से जब सेपरेट करते हैं तो दोनों का ट्रू होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स है. तो ये हमको फॉल्स मिल गया, ठीक है. तो ये फॉल्स मिल गया. फिर हमने क्या देखा? फिर इसके बाद आया फॉल्स और फॉल्स, ठीक है. शॉर्ट में मैंने एफ लिख दिया फॉल्स के लिए. और से सेपरेट जब करेंगे और दोनों कंडीशन ही फॉल्स हैं तो फाइनल आंसर भी फॉल्स होगा. तो जब ये फाइनल आंसर ही फॉल्स होगा तो ओवरऑल ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ओवरऑल ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. अब ये ओवरऑल फॉल्स हो जाएगी तो इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट नहीं होगा, जो यहाँ दे रखा है प्रिंट ए. एक बात और क्लियर होगी कि ए भी प्रिंट नहीं होने जा रहा, ये भी प्रिंट नहीं होगा. तो ए प्रिंट नहीं होगा, डी प्रिंट नहीं होगा. अब या तो बी प्रिंट होगा या सी प्रिंट होगा. बात और इंपॉर्टेंट ये है कि इफ एलिफ एल्स में से सिर्फ एक पार्ट ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है. अगर एलिफ का पार्ट ट्रू पाया जाता है और वो एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. और अगर इफ का ट्रू पाया जाता है तो इफ ट्रू पाए जाने पर फिर एलिफ और एल्स का पार्ट चेक ही नहीं होंगे इस केस में. चलिए आगे देखते हैं. तो अभी हमको यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि ना तो ए प्रिंट होने जा रहा है यहाँ पर, ना ही डी प्रिंट होने जा रहा है. तो अब एलिफ पर देखते हैं. एलिफ में क्या दे रखा है? फॉल्स एंड फॉल्स. ऑब्वियसली फॉल्स एंड फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है. फिर दे रखा है फॉल्स और ट्रू. तो फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगा. फिर दे रखा ट्रू एंड ट्रू. तो ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू होता ही है. अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो ट्रुथ टेबल बना लीजिए, उसको देखिए फिर, और एक सीक्वेंस से लेफ्ट टू राइट उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे इस केस में हमने क्या किया? पहले फॉल्स एंड फॉल्स चेक किया. तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स. फिर जो फाइनल रिजल्ट तो ऑब्वियसली इसका फॉल्स ही है, तो फिर उस फॉल्स का किसके साथ कंपेरिजन होगा? इस ट्रू के साथ. फॉल्स और ट्रू, और बीच में इसमें क्या है? इन बिटवीन और से सेपरेट कर रखा है ये. तो फॉल्स और ट्रू को जब सेपरेट किया और से तो क्या आ जाएगा? अगेन ट्रू.
तो ट्रू को फिर हमने चेक किया इस ट्रू के साथ, तो ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, अगेन ट्रू, तो ट्रू आ जाएगा, तो बी विल बी प्रिंटेड, तो बी प्रिंट हो जाएगा इस केस में। और अब जब बी प्रिंट हो जाएगा तो ये सी तो प्रिंट नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी ये है कि इफ एलिफ एल्स में से कोई एक पार्टी एग्जीक्यूट होता है, इफ का नहीं हुआ एलिफ का हो गया तो एल्स का नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये अभी हम इस पार्ट के अंदर चल रहे थे, और ये जो इफ से रिलेटेड एल्स है इसको तो हम पहले ही चेक कर चुके थे, क्योंकि ये इफ एल्स इफ से रिलेटेड है, जो टॉप पर दे रखा है आपको, ट्रू और ट्रू के साथ दे रखा है। तो ये तो ट्रू पाया गया है, तभी ये डिसाइड हुआ कि अब इफ के अंदर जो ब्लॉक दे रखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो जब वो एग्जीक्यूट होगा तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और उसके अंदर भी हमने क्या देखा, उसके अंदर भी एलिफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इट मीन्स बी विल बी द फाइनल आंसर, तो बी हमारा आंसर होगा फाइनल। सो बी इज द आउटपुट, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली इनमें से कोई एक ही आउटपुट आना था, तो ए आना था, बी आना था, सी आना था, डी आना था, तो इसके अंदर जो आउटपुट आएगा वो बी आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये देखना होता है, हमेशा सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है आपको, और ये बात ध्यान रखनी होती है, माइंड में ये होना चाहिए आपको क्लियर बिल्कुल, कि इफ़ एलिफ एल्स में से कोई एक पार्टी एग्जीक्यूट होता है, पहले इफ चेक होता है, फॉल्स पाया जाता है तब एलिफ चेक होता है, एलिफ फॉल्स पाया जाता है तब एल्स चेक होता है। तो इफ का अगर ट्रू पाया जाता है तो एलिफ और एल्स चेक नहीं होंगे, इफ से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट होगा। क्लियर, चलिए। और एक बात तो पता होगा वैसे आपको, कि अगर मोर देन वन कंडीशंस होती हैं तो हम पहले इफ़ के साथ देते हैं, सेकंड एलिफ के देते हैं, और अगर और भी कंडीशंस हैं तो फिर वो भी एलिफ के साथ दी जाती हैं, और जो रिमेनिंग है वो सब एल्स के साथ हम प्रिंट कर देते हैं। तो इट मीन्स अगर सभी कंडीशन फॉल्स पाई जाती हैं तो एल्स के साथ देखिए हमने कोई कंडीशन मेंशन नहीं करते। इट मीन्स अगर सभी ऊपर की कंडीशंस फॉल्स पाई जाती हैं देन एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये लूप बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो इसका क्या आउटपुट होगा ये हमको देख के बताना है। आई इज इक्वल टू वन, ओके। अब ये लूप बेस्ड क्वेश्चन है, तो लूप में सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि लूप में एक होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है, दूसरा होता है आपका चेकिंग कंडीशन, और थर्ड होता है आपका स्टेप वैल्यू, जिसे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, जैसे यहाँ दे रखा है, इनिशियलाइज कर दिया आई इक्वल टू वन। तो लूप चलाना है हमें किसी वेरिएबल के लिए, वेरिएबल का नेम ले लिया हमने आई, और आई को इनिशियलाइज कर दिया वन से। क्लियर। वाइल के साथ कंडीशन लिखते हैं, कौन सी कंडीशन, चेकिंग कंडीशन, कि ये कब तक चलेगा लूप, और जब कोई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, ओके। तो कंडीशन क्या दी थी, कंडीशन यहाँ पर कुछ नहीं दी, बल्कि यहाँ ट्रू लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रू है तो जब तक वैल्यू ट्रू रहेगी तब तक लूप चलेगा, जब तक वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तब लूप नहीं चलेगा। तो ट्रू है भी है फिलहाल यहाँ पर। अब हम लूप की बॉडी के अंदर आएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये देखिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमेशा लूप की बॉडी के अंदर दे रखा होता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। तो ये बॉडी ऑफ द लूप है, यहाँ दे भी रखा है आई इजिकल टू आई प्लस वन, आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा हमेशा। तो आई की वैल्यू पहली क्या थी, वन। नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगी, जब सेकंड टाइम लूप चलेगा, टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर सेवन, फिर एट, और ये तब तक इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक कि, इंक्रीमेंट तो होगा ही, लूप तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाइड होती है आपकी। और ये चूंकि यहाँ ट्रू दे रखा है तो ये तो हमेशा सेटिस्फाइड ही होगी, इसमें कभी आपको फॉल्स मिलेगा नहीं। तो क्या लूप इन्फाइनाइट टाइम चलेगा, अब ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर बॉडी के क्या दे रखा है। इफ दे रखा है तो ये कंडीशन दे रखी, इफ आई मॉडलो थ्री इक्वल टू जीरो। अब मॉडलो ऑपरेटर की या रिमाइंडर डिवीजन ऑपरेटर जिसे हम जानते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है। जैसे हमने थ्री को टू से डिवाइड किया तो रिमाइंडर वन आएगा, ठीक है, तो वन इज द आंसर, तो उसका आंसर जो होगा वन होगा। तो ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो यहाँ हमने क्या देखा, हमने देखा आई को, आई की वैल्यू क्या है, वन, वन को थ्री से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, ऑब्वियसली वन आएगा, ठीक है। तो क्या वो जीरो के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब ये चूंकि फॉल्स है तो ये ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि ये ब्रेक इस इफ का पार्ट है, स्पेस दे के दे रखा है ना, इंडेंटेशन जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट हम क्या आएंगे, प्रिंट आई, आई प्रिंट होगा। आई क्या है, आई है आपका वन, तो वन प्रिंट हो जाएगा, और लाइन चेंज हो जाएगी। प्रिंट स्टेटमेंट में ये प्रॉपर्टी होती है आपकी डिफ़ॉल्ट की, लाइन चेंज हो जाती है एक बार, जब दोबारा प्रिंट चलेगा तो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करेगा ये।
और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 इट मीन्स 2। तो अब ये 2 के लिए चेक करेगा, 2 के लिए देखते हैं। लूप फिर दोबारा चलेगा यहाँ पर, क्योंकि कंडीशन अभी भी ट्रू है। 2 मॉडलो 3, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। तो ब्रेक तो अभी भी नहीं आएगा, तो 2 फिर प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा और लूप फिर एक बार चलेगा। अब आई इज इक्वल टू 3 के लिए चलेगा। अब यहाँ पर देखिए कैच है, यहाँ पर 3 के लिए चलेगा तो 3 मॉडलो 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू। अब कंडीशन हमें ट्रू मिल गई यहाँ पर, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक की प्रॉपर्टी क्या है, जैसे ही ब्रेक इनकाउंटर होगा यहाँ पर हम लूप के बाहर आ जाएंगे, लूप आगे चेक ही नहीं होगा, तो सिर्फ 1 प्रिंट होगा और फिर 2 प्रिंट होगा, बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये ब्रेक की प्रॉपर्टी होती है, लूप के बाहर आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ ब्रेक मिलता है लूप में। तो 1 प्रिंट होगा देन 2 प्रिंट होगा। याद रखिएगा आप इसको ऐसे ना लिखें, इसको हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट 2 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है और प्रिंट की ये प्रॉपर्टी है कि हमेशा जो प्रिंट जितनी भी बार एग्जीक्यूट होता है तो लाइन चेंज होती है ऑटोमेटिकली इसमें, ठीक है। तो 1 and 2 इज द आंसर, लाइन विद चेंजिंग विद लाइन चेंज तो होगी ऑब्वियसली इसके अंदर, तो दैट इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स विल द लूप रन। इसमें पूछा ये गया है कि आउटपुट नहीं पूछा है, इसमें आउटपुट क्या आएगा, पूछा गया है लूप कितनी बार चलेगा। तो हमें काउंट करना है लूप को। देखिए इनिशियलाइजेशन यहाँ हो गया, आई इज इक्वल टू 2 आई की स्टार्टिंग वैल्यू 2 है, 2 से इनिशियलाइज कर दिया गया आई को, ओके। यहाँ कंडीशन चेक हो रही है, आई इज ग्रेटर देन 0, ओके, फाउंड टू बी ट्रू, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 0 बिल्कुल सही है। तो लूप तो चलेगा, एक बार तो चलेगा कम से कम, एटलीस्ट 1 टाइम तो एग्जीक्यूट होना ही होना है इसको। अंदर आएंगे लूप की बॉडी में, कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दे रखा, सिर्फ एक जो नेसेसरी कंडीशन है लूप की वो क्या है आपकी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेप वैल्यू जिसे बोलते हैं वो दे रखा है। तो क्या दे रखा है वो, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 1, 2 - 1 मीन्स 1, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगा। डिक्रीमेंट होने के बाद फिर से लूप की कंडीशन चेक होगी, क्या लूप अभी भी ट्रू शो कर रहा है। तो 1 इज ग्रेटर देन 0 अगेन ट्रू है, तो लूप एक बार और चलेगा। तो एक बार ऑलरेडी चल चुका था एटलीस्ट, तो अब यहाँ टोटल टाइम कितनी बार चल गया ये, 2 टाइम्स। जब सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो फिर से डिक्रीमेंट होगा, अब 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। 0 हो जाएगा और लूप की कंडीशन फिर से चेक होगी, 0 इज ग्रेटर देन 0, नो, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन तो हो गई फॉल्स। यहाँ हमको मिल गया फॉल्स। अब चूंकि हमको यहाँ फॉल्स मिल गया तो आगे इसके अंदर क्या है वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो कितनी बार चला लूप, 2 टाइम्स, 2 इज द आंसर, ओके, 2 इज द आंसर, आंसर होगा इसका 2। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा आपको अच्छी तरीके से इसको। अब इसमें सब कुछ है ऑलमोस्ट, एक लिस्ट दे रखी है, लूप दे रखा है, फॉर लूप दे रखा है, इफ स्टेटमेंट दे रखे हैं, कंटिन्यू भी दे रखा है, ब्रेक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कंटिन्यू और आउटपुट भी दे रखा है। तो अगर आप कर सकते हैं पहले तो इसको कर लीजिए, सॉल्व करके देखिए, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व कीजिए, वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आउटपुट देखिए। आउटपुट जब आपका आ जाए तो फिर आप ये देखिए कि क्या ये आउटपुट इस आउटपुट से मैच कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए पाइथन पर जाके, सॉफ्टवेयर पर जाके, और अगर सेम आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है, डिफरेंट आ रहा है तो फिर एक बार मैं फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिए और एक्सप्लेनेशन को देखिए, ठीक है। अब आप पॉज कर दीजिए, ठीक। नाउ अब इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कैसे होगा। लिस्ट दे रखा है यहाँ पर, एक लिस्ट का नेम है list1, कोई प्रॉब्लम नहीं। एलिमेंट्स दे रखे हैं, लिस्ट के एलिमेंट्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट दे रखे हैं 3, 2, 5, 6, 0, 7, 9, कोई बात नहीं, यहाँ तक क्लियर है लाइन। सम इज इक्वल टू 0, ये इस लाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक वेरिएबल सम ले रखा है, 0 से इनिशियलाइज कर रखा है, सम 1 इज इक्वल टू 0। एक और वेरिएबल ले रखा है सम 1, उसको भी 0 से इनिशियलाइज कर रखा है। यहाँ तक अभी कुछ समझने का ऐसा खास कुछ है नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ लूप स्टार्ट होता है, लूप कौन सा है, लूप है फॉर लूप, क्लियर है, लूप दे रखा है फॉर लूप।
तो फॉर लूप के साथ अपने फॉर लूप को यूज़ किया होगा, तो सबसे पहले हम फॉर लिखते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते हैं। तो वेरिएबल का नेम यहाँ पर क्या है, ELEM, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ। इन इन अगेन एक कीवर्ड है जो सर्च करता है एलिमेंट्स को, इसके आगे जो भी दे रखा हुआ, कोई सीक्वेंस दे रखा हुआ, ठीक है। तो सीक्वेंस दे रखा है यहाँ पर, लिस्ट लिस्ट दे रखी है यहाँ पर, और लिस्ट वन चूँकि हम ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं, तो एक्चुअली ये इसमें सर्च करेगा 3 2 5 6 0 7 9, और 1 बाई 1 करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलिमेंट की वैल्यू होगी, ELEM की वैल्यू होगी, वो 3 होगी, फर्स्ट वैल्यू होगी 3 के लिए लूप चलेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ELEM की वैल्यू 3 होगी। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ स्क्रीन पर इसको भी, अगर आपको क्लियर हो गया है तो, ताकि आगे आपको अच्छा समझ में आ सके इसको। सो ELEM वैल्यू की फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू 3 है, 3 के लिए चेक होगा इफ़ कंडीशन। लूप के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो अपना काम करेंगे। जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट दे रखे हैं तो उनका काम ये होता है कंडीशन को चेक करना, तो कंडीशन चेक होगी, कंडीशन दे भी रखी है। ELEM की वैल्यू है 3 मॉडलो 2, 3 मॉडलो डिवीजन 2, और ELEM की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, रिमाइंडर 1, और यहाँ कितना दे रखा है 0, तो कंडीशन तो हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, सेकेंड पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यहाँ इफ एल्स नहीं दे रखा है, यहाँ पर हमको जो दे रखा है ये एक इफ स्टेटमेंट है, ये भी एक इफ स्टेटमेंट है। अब ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में एक कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ये नहीं है कि ये पहला इफ एग्जीक्यूट हो गया, फर्स्ट इफ एग्जीक्यूट हो गया तो सेकंड इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा, नहीं, वो अलग है। जो बाउंडेशन हमारी इफ एल्स में रहती है ना, या इफ एल्स में रहती है, वो बाउंडेशन ओनली इफ में नहीं रहती। हम एक प्रोग्राम में कितनी भी इफ दे सकते हैं, और वो सभी कंडीशन चेक होती है, ठीक है, 1 बाई 1। उनका एक दूसरे से कोई आपस में इंटरकनेक्शन नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं वो। तो ये फॉल्स और ट्रू, इट डजेंट मैटर, इसको तो एग्जीक्यूट होना ही होना है, बताना मैं आपको ये चाह रहा था यहाँ पर। तो ये फॉल्स हो गया, तो इसमें तो कुछ हुआ नहीं। अब इसका देखते हैं। ELEM की वैल्यू अभी भी 3 है, क्योंकि 3 के लिए चल रहा है, लूप की बॉडी के अंदर ही अभी अभी हम हैं। तो 3 मॉडलो 3 इक्वल टू 0, बिल्कुल 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। कंडीशन यहाँ पर ट्रू मिल गई, कंडीशन ट्रू मिल गई, तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखा है समवन इज इक्वल टू समवन प्लस ELEM। अब समवन की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर क्या होगा 0 प्लस ELEM, तो 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 कितना हो गया, कितना हुआ 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 हो गया आपका 3, समवन की वैल्यू हो गई अभी 3, और सम की वैल्यू अभी कितनी बनी हुई है, अभी भी इनिशियल वैल्यू बनी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो 0 ही है, लेकिन समवन की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। तो लूप तो एंड नहीं हुआ, लूप एंड नहीं हुआ तो ये प्रिंट स्टेटमेंट अभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगेन अब लूप की सेकंड वैल्यू के लिए प्रोग्राम चलेगा, इट मीन्स 2 के लिए चलेगा। लिस्ट में ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहता है, नेक्स्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली आती रहती है, चूंकि यहाँ लिस्ट दे रखी है। तो जो इंक्रीमेंट वाला स्टेप है, ठीक है, वो हर बार लूप की नेक्स्ट वैल्यू को लेगा। एक तो बात ये समझ लीजिए। दूसरा ये कि ये लूप कब तक चलेगा, ये लूप लिस्ट की सभी वैल्यू के लिए चलेगा, जब से लास्ट वैल्यू आ जाएगी लूप ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। तो आपको ये लग रहा है कि इसके अंदर सर इनिशियलाइजेशन तो दे रखा है इसके अंदर ELEM, ठीक है, इनिशियलाइजेशन फर्स्ट वैल्यू से होगा, चेकिंग कंडीशन के लिए लास्ट वैल्यू होगी, इस तक के 9 तक के लिए चलेगा, और इंक्रीमेंट होता रहेगा लूप की सभी वैल्यू के लिए। तो ये इसका इनिशियलाइजेशन, चेकिंग कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ये बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये 2 के लिए चलेगा लूप। तो जब ये लूप 2 के लिए चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ कंडीशन चेक होगी, 2 मॉडलो 2 इज 0, आंसर इज यस, बिल्कुल ठीक है, 2 मॉडलो 2 0 होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस ELEM। सम की वैल्यू कितनी है 0, 0 में एलिमेंट की वैल्यू ऐड हो जाएगी, इसका मतलब अब सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, पहले कितनी थी 0। तो जो पुरानी वैल्यू थी, ओल्डेस्ट वैल्यू थी जो, वो सब, और जितनी भी ओल्ड वैल्यू थी वो सब अब कोई मायने नहीं रखती, कोई मीनिंग, सो वो सब मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है अभी आपके लिए, क्योंकि हमेशा लेटेस्ट वैल्यू कंसीडर होती है इसके अंदर। अपडेट हो गई वैल्यू, इसको ऐसे समझिए, और अब सम की वैल्यू 2 हो गई आपकी, ठीक है। सम की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ हमको क्या मिला, कंटिन्यू। अब ये जो कंटिन्यू मिल गया,
इस कंटिन्यू की ये स्पेशलिटी है कि ये कंटिन्यू ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आगे नहीं जाने देगा, ये वापस बाउंस बैक करेगा, बाउंस बैक करके आपको दोबारा ले जाएगा लूप पर। ठीक है, ये कंटिन्यू की प्रॉपर्टी होती है लूप के। आप आगे नेक्स्ट वैल्यू के लिए लूप चलेगा। तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी है इसकी 5। 5 को चेक करेंगे 2 से, 5 को चेक करेंगे 2 से तो 0 तो आ नहीं रहा है। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर 1 आएगा, इसका मतलब इफ वाला पहले फर्स्ट इफ का पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा और सेकंड वाला भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो 5 के लिए ना तो सम की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट होगा, ना ही सम 1 की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 के लिए, नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा 6 के लिए। तो जब 6 के लिए लूप चलेगा आपका तो क्या होगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। तो अब सम की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम प्लस ई एल ई एम। तो क्या हो जाएगा, सम की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 + 6 कितनी हो जाएगी, 2 + 6 हो जाएगी 8। तो अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो सम की वैल्यू अपडेट हो गई, इसको कैंसिल कर दीजिए क्योंकि अभी लेटेस्ट वैल्यू है। और फिर क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है अब ये 3 से चेक ही नहीं करेगा, इसको पीछे आपको फिर से बाउंस बैक करेगा, लूप की नेक्स्ट वैल्यू के लिए चेक करेगा। नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्या है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है इसकी 0। तो 0 के लिए लूप चलेगा, 0 के लिए जब ये लूप चलेगा आपका 0 के लिए जब ये लूप चलेगा आपका तो क्या होगा, क्या होगा 0 मॉडलो 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 मॉडलो 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू पाई जाती है क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 ही आता है। तो फिर सम की वैल्यू फिर अपडेट होगी, तो सम की वैल्यू होगी 8 + 0। अब चूंकि 8 + 0 कितना आता है, 8 + 0 तो 8 ही आएगा। ठीक है, तो अभी भी अनचेंज रहेगी सम। ये अलग बात है कि ऑपरेशन उसका परफॉर्म हुआ, वैल्यू अनचेंज रही, ये अलग बात है। तो अभी भी सम की वैल्यू 8 है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दे रखा, कंटिन्यू दे रखा है। तो कंटिन्यू दे रखा है तो फिर ये इफ वाले पार्ट को प्रिवेंट करेगा एग्जीक्यूट होने से और दोबारा से बाउंस बैक करेगा और नेक्स्ट वैल्यू के लिए चेक करेगा 7 के लिए। 7 के लिए चेक करेंगे, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1 आएगा रिमाइंडर। तो ये वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और 7 को फिर 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो भी 0 नहीं आएगा, तो ये वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस केस में क्या हो रहा है कि कंटिन्यू तो अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है, लेकिन 7 को 3 से डिवाइड करने के बाद भी हमको कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि इसकी कंडीशन ये है कि 7 को 3 से जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, वो आ नहीं रहा है। इसलिए समवन की वैल्यू अभी भी अनचेंज रहेगी 7 के लिए भी। और लास्ट टाइम लूप लास्ट वैल्यू के लिए चलेगा लिस्ट की, और वो लास्ट वैल्यू क्या है 9। तो 9 के लिए चलेगा। चलिए देखते हैं 9 के लिए क्या होता है। तो 9 के लिए चेक करते हैं हमने, 9 मॉडलो 2 0 बिल्कुल नहीं है। 9 को 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1 आता है, तो ये पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो सम की जो वैल्यू है वो अनचेंज रहेगी, यानी सम की वैल्यू 8 थी और 8 है, 8 ही रहेगी अभी। ठीक है, लेकिन हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट क्या है, ई एल ई एम मॉडलो 3। ई एल ई एम एलिमेंट की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0, क्योंकि 9 कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो सम वन की वैल्यू में अब चेंज होगा। तो सम वन की वैल्यू में कितना चेंज हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है सम वन प्लस ई एल ई एम। सम वन की पहली वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 + 9, 3 + 9 कितना हो जाएगा, 3 + 9 हो जाएगा यहाँ पर 12, तो 12 हो जाएगा। अब सभी वैल्यूज के लिए लूप चल चुका है, लूप इज ओवर नाउ, लूप यहाँ एंड हो चुका है। अब लूप के बाहर आ जाएंगे, लूप के बाहर हमारे प्रिंट स्टेटमेंट वेट कर रहे हैं। और प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट है सम और सम वन, दो प्रिंट स्टेटमेंट है। तो सम और सम वन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 8 और 12। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं है, अभी एंड नहीं हुई अभी, अभी थोड़ा सा ट्विस्ट और बाकी है अभी इसमें। तो सम प्रिंट होगा तो 8 तो प्रिंट हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन 8 के बाद 12 प्रिंट होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी, 8 के साथ प्रिंट होगा, 8 के नीचे प्रिंट होगा, आफ्टर द 8 प्रिंट होगा। मतलब किस तरह से प्रिंट होगा, क्या ऑर्डर होगा, एलिमेंट्स किस तरीके से रखे जाएंगे, या तो ये आउटपुट आएगा या ये आउटपुट आएगा। मैं ये बताना आपको ये चाह रहा हूँ यहाँ पर, इन दोनों में से ऑब्वियसली एक ही आउटपुट होगा। ठीक है, डिफॉल्ट जो होता है वो ये होता है आपका। लेकिन यहाँ एंड दे रखा है, और इसकी क्या स्पेशलिटी है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये यहाँ पर क्या दे रखा है, एंड इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग दे रखी है। इसका मतलब अब ये जो नेक्स्ट प्रिंट को सेपरेट करेगा, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग से सेपरेट करेगा, लाइन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो 8 प्रिंट हो गया, 8 प्रिंट होने के बाद कर्सर नीचे नहीं आएगा,
बल्कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, नहीं स्पेस प्रिंट करेगा। स्पेस प्रिंट करने के बाद जब दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है, वो क्या दे रखा है, प्रिंट समवन। समवन की वैल्यू कितनी, 12। तो 12 8 के बाद प्रिंट होगा, 8 स्पेस 12 प्रिंट होगा, ना कि इस तरीके से 8 के बाद 12 नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट होगा। तो जो आउटपुट होगा वो 8 स्पेस 12 प्रिंट होगा। और आपको अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। आपने लाइन चेंज करके लिखा तो नो डाउट कि सम वन और सम की वैल्यू ट्रू है आपकी, फिर भी आपको 0 मार्क्स ही मिलेंगे क्योंकि आपने उसको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, 8 स्पेस 12। ओके, दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो आई थिंक अभी ये समझ में आ गया होगा, एक बार और करके देखिएगा इसको तो और क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, कुछ और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।